Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. And how is everyone doing? Yes, I'm sure. Yes, all of you are enjoying. Good. So, what we are going to do in this session? In this session, again, we are going to discuss some numericals on combination of registers. And I assure you that these numericals you will find are very, very interesting. Okay. And these numericals have been asked, or similar numericals have been asked in previous years board exams also. And in board exams, again, I repeat my sentence, simple questions are there. It's board exams are never very tough. So just keep doing your hard work, keep gaining knowledge, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, then apply the knowledge. So the questions which we are going to do today are based on the previously gained knowledge. So these are knowledge based questions, जिसमें आपको knowledge को आपका use करना है ना? So एंड व्हेन आई राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, तो आप अपनी नोटबुक में उसी समय करना शुरू कर दीजिए. इससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट और होगा. इस एक्सरसाइज विल बी देयर, ब्रेन एक्सरसाइज विल बी देयर एंड यू विल इंप्रूव. So now let's start the session and move towards whiteboard. Okay. And again, humble request, we are learning, we are not just for earning. Okay. So education जो है ये learning और earning दोनों के लिए है. सो लर्निंग कैसी करनी है, हमको एनवायरनमेंट को सेव करना है. सो कंटिन्यू टू सेव वाटर फॉर जनरेशंस टू कम. गॉड ब्लेस यू ऑल. लेट्स स्टार्ट द सेशन. Yes, dear students, in previous two sessions, we solved some numericals on series combination and parallel combination, means combination of registers. And I'm sure that you must have enjoyed these numericals, because ये जो numericals है not only good for competitive exams, these are very good for CBSE exam also, okay, term 2 CBSE exam also. And these questions are important for all boards. Yes, that how to use formula, how to get maximum current, minimum current, and then how to calculate the current passing through a voltmeter, okay, and a meter. So and हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस किए थे जिसमें कि हाउ टू ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट. ठीक है. सो काफी वैरायटी हमने की है. आज हम इस सेशन में फिर से इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. मींस वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, and these questions are also important and different from the previous questions. Okay. And it's a humble request to all of you that when I'm writing a question on the board, so in the meantime start doing the question in the notebook also. उसको नोटबुक में आप करते रहिए एंड कोशिश करिए कि हमसे पहले आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें. देन लर्निंग विल बी मोर. लर्निंग विल बी मोर. ओके. सो व्हाटएवर इज रिटन हियर ऑन द बोर्ड इज इंपॉर्टेंट. एंड उनमें से एक चीज लिखी है हमने, सेव वाटर. सेव वाटर ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ वी लव आवर जनरेशंस टू कम, है ना, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियां सुरक्षित हो, खुश हो, तो वी हैव टू सेव एनवायरनमेंट. ओके. एंड लाइफ इज लाइक अ वेव. ये पार्टिकल शो करते हैं हमारी लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं. तो समटाइम वी आर इन लो, समटाइम वी आर इन हाई. सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली मूव. तो नेवर बी डिस्टर्ब. कभी डिप्रेशन वर्ड्स को तो सुनिए मत, ये आदि मत करिए. ठीक है. हमेशा आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग इन द नोटबुक. So this is the first question. Draw a schematic circuit diagram to connect two resistors of 5 ohm and 10 ohm in series. In series यहाँ छूट गया था तो हमने ऊपर लिख दिया. In series with a battery of 24 volt and meter and voltmeter. Voltmeter across both resistors. Voltmeter दोनों resistors के across लगा गया हमने. Find a meter reading and वोल्टमीटर रीडिंग्स ऑल्सो. ठीक है. दोनों की हमें रीडिंग भी फाइंड करनी है. ठीक है. सो आप इस पे स्टार्ट कर देंगे. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो स्टार्ट डूइंग इन द नोटबुक. अच्छा. और उसमें हम बाद में पूछेंगे कि वोल्टमीटर का जो रीडिंग है दोनों में के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा हमने और आपसे पूछ लिया है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन हियर. And when you are solving the question, don't forget to write given. इसमें गिवन जो है वो लिख लेंगे. R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm, and potential difference, okay, across yes resistors
is 24 volt. To find ammeter reading, number 2 voltmeter reading. Ammeter reading means क्या find करेंगे? Current. And voltmeter reading means we shall find out potential difference. ठीक है? So now let's start the question. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, तो देखिए यहां पर हमारा ये बैटरी हो गया. दिस इज अ बैटरी हियर. ओके, ये बैटरी है हमारा. एंड व्हाट वी हैव टू कनेक्ट? वी हैव टू कनेक्ट अमीटर. तो पहले हम इसमें अमीटर लगा देंगे, है ना? सो हियर इट इज अमीटर. यस, अमीटर कैन बी दिस साइड और दिस साइड. किसी भी तरफ अमीटर को बना सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्विच रह गया तो हमने स्विच भी लगा दिया ना, यहां पर हमने इसमें स्विच भी लगा दिया. तो दिस इज ऑन, पॉइंट ये बीच में, तो दिस में स्विच इज ऑन, करंट इज फ्लोइंग. नाउ अमीटर हो गया हमारा. एंड हियर नाउ टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. ये हमारा एक रेजिस्टर हो गया एंड ये हमारा दूसरा रेजिस्टर हो गया. ठीक है, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? वोल्टमीटर रह गया, है ना? वोल्टमीटर जो है अक्रॉस बोथ रेजिस्टर्स है. ये रेजिस्टर R1 है एंड दिस इज द रेजिस्टर R2. वोल्टमीटर को इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है. इसका मतलब वोल्टमीटर कैसा होगा? वोल्टमीटर इस तरह से होगा. ठीक है ना? यस, वोल्टमीटर इस तरह से होगा. तो हमारा जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे इसमें आ गई है. तो ये देखिए, ये प्लस है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. सो अमीटर का यहां पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए? इट इज पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव ऑफ अमीटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ बैटरी. ये होगा नेगेटिव. एंड हियर व्हाट साइन शुड बी देयर? यहां पे क्या साइन होना चाहिए? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव. यस, नेगेटिव. पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, है ना? सीरीज में होंगे. ये हमारा होगा पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये प्रैक्टिस जनरली हम नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है. ये हमारा की हो गया. तो नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग कितना होगा, अमीटर रीडिंग कितना निकालेंगे. यहां पर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर दिया. एंड यहां करंट देखिए कैसे आ रहा है. हियर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वोल्टमीटर क्या है इसके साथ? पैरेलल में है. ठीक है ना? इट इज इन पैरेलल बिकॉज हियर करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक. यस, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. डन. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. Yes, any problem here? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट हियर R1 एंड R2 का कॉम्बिनेशन कितना होगा. और ये हमारा कितना है? दिस इज 24 वोल्ट. नाउ लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, तो लिखने में कंजूसी नहीं करिए. राइट ऑल स्टेटमेंट्स, पूरे आंसर लिखिएगा. शॉर्टकट इज नॉट गुड, नो? तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is equal to R1 plus R2 and here it will be how much? R1 कितना है देखिए 5 ohm plus this is 10 ohm, so it will be how much? 15 ohm. तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? दिस इज 15 ohm. 15 ohm is the equivalent resistance. Now we have to get the ammeter reading. करंट अमीटर में कितना पास होगा? अमीटर रीडिंग मींस करंट. ये हमने जानबूझकर इसमें चेंज किया है कि कभी एग्जाम में अगर आ भी जाता है कि अमीटर रीडिंग, तो नो नीड टू ओके गेट कंफ्यूज. परेशान होने की जरूरत नहीं है. अमीटर रीडिंग मींस करंट फाइंड करना है ना. तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे अमीटर रीडिंग. अमीटर रीडिंग कितना होगा? हमें आई फाइंड करना है.
और आई फाइंड करने के लिए हेल्प लेंगे किसकी, ओम्स लॉ के फार्मूले की, V इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू V अपॉन R एंड हियर इट इज V इज हाउ मच 24 अपॉन 15। यस, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, हियर 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 आया। एग्जाम में अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो 8 अपॉन 5 छोड़ देंगे, नहीं तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे, इट विल बी 16 अपॉन 10 इक्वल टू 1.6 एम्पियर। ओके, तो दिस इज वेरी इजी मेथड। ब्रिंग द 5 और 25 होते हैं तो नियरेस्ट 0 के, तो 5 के नियरेस्ट 0 कितना आता है 10, तो 5 टू द 10, 8 टू द 16। तो ये अमीटर रीडिंग हमारा कितना आ गया 16, तो 16 एम्पियर करंट यहाँ आया, 16 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में जा रहा है। अमीटर चाहे हम यहाँ लगाएं, ओके, यहाँ लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो रीडिंग ऑफ अमीटर विल रिमेन सेम, दैट इज 1.6 एम्पियर। यस, now after that we have to find out voltmeter reading. Any one of you, voltmeter reading कितना होगा? Without solving we can find out कितना होगा? Anyone? तो पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू कितना आएगा? Yes, who is giving answer? ट्राई कर रहे हैं, ओके। So this should be equal to the, फाइंड करेंगे, चलिए कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर हम जानते हैं कितना आंसर आएगा। तो इसको ना फाइंड, ये स्टार्ट होंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ V एंड इसको रब कर दें बिकॉज ऊपर फाइंड करेंगे। ओके ओके, नाउ सम ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर। यस, सो कितना है वोल्टमीटर का रीडिंग, कितना 24, गुड। तो सम ऑफ यू आर शोइंग यस इट इज 24। तो देखिए कैसा है, तो वोल्टमीटर रीडिंग हमें निकालना है, दिस मींस वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये देखिए अप्लाइड जो होगा उतना ही होगा 24। सो वैसे निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर। सो हियर V, I इज 1.6, ये हमने निकाला 1.6, R मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर इज 15। तो इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 15 6 जा 90 and 15 1 जा 15 and 9 24 and here is point. So voltmeter reading is 24 volt. ठीक है, वोल्टमीटर रीडिंग कितना है 24 वोल्ट। तो बोर्ड एग्जाम में जब आप करेंगे तो इस तरह से बॉक्स में ब्लैक कलर से लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है एंड एग्जामिनर की नजर जल्दी से किस पे पड़ती है, आंसर के ऊपर पड़ती है एंड देन यू गेट मार्क्स इजीली। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम, अगर हम पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ R1 कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, ये इन सीरीज पे है तो टोटल 24, इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, R1 के लिए एक पार्ट होगा, R2 के लिए दूसरा पार्ट होगा, है ना। यहां पर जो होगा V1 इट इज इक्वल टू I R1 एंड हियर V2 जो होगा दैट इज इक्वल टू I R2। यस, और इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू 24। कैलकुलेट करके देख लीजिए। यस, हरी अप, डू इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 हियर, फाइंड करें V1 की वैल्यू, I is how much 1.6, R1 is 5, 1.6 into 5 कितना होगा 8, ठीक है। तो V1 कितना आएगा 8 एंड V2 देखिए कितना आएगा, I is 1.6 and R2 is how much 10, so 1.6 into 10, 1.6 into 10 16 वोल्ट। और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितना है, दैट इज 24, है ना। तो हमारा आंसर एकदम सही है। तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द पोटेंशियल इन अक्रॉस R1 और पोटेंशियल अक्रॉस R2, यू कैन आल्सो फाइंड आउट। प्रैक्टिस खुद करते रहिए। क्वेश्चन आपको एक दिया, ट्राई टू मेक
2 more or 3 more new questions from the given question. Okay, so this will help you to develop your brain also. आपका दिमाग और बढ़ेगा and you will enjoy कि I have done new question. Okay, मैंने अपने आप नया क्वेश्चन बनाया है. So this habit should be developed. And I request always to all of you that try to be your own teacher. Okay, so done. Okay, now I am going to rub it. So now second question is, in the given circuit diagram, the potential difference across AB is how much? 28 volt. Find क्या करना है हमको, देखिए the equivalent resistance of network CB, C से B तक का equivalent resistance find करना है. C से B, this you have to remember. CB given है ना, and the current flowing through AC. AC में कितना करंट पास हो रहा है ये हमें फाइंड करना है. Okay, different parts are there. Then third is the potential difference across AC. AC के across potential difference कितना होगा? This we have to find out. And the fourth is the current flowing through 3 ohm. 3 ohm के resistor में कितना current flow हो रहा है? And this kind of question has been asked in 2013 board exam. And it is very simple question. बोर्ड एग्जाम में कभी भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. रिमेंबर दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, बिट टिपिकल. एंड सर हाउ मेनी मार्क्स दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? तो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, हाफ 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 हाफ. इस तरह से ये कितने 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है ना, और पूछा जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. नोट डाउन द क्वेश्चन एंड देन वी शैल बी doing. Okay, hurry up, note down and try to do on your own. हमसे पहले करने की कोशिश करिएगा, right? So now I am writing the solution, क्योंकि कुछ solution यहाँ आएगा, then I have to rub this, फिर ऊपर हम करेंगे. ठीक है, तो now start करेंगे. Yes, done. कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, good. तो देखिए हमारा यहाँ पर देखिए first है the equivalent resistance of network CB. तो देखिए CB में ये R2 हम इसको ले लिए, R2 6 ohm, R3 is 3 ohm and R1 is 5 ohm. तो CB में देखो ये कैसे हैं, ये they are connected in parallel, है ना, आमने सामने पैरेलल में है. और एट C क्या हो रहा है, जो करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 अलग अलग रास्ते हैं करंट के, है ना. तो दिस मींस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फार्मूला हम सिंपल वाला यूज करेंगे, है ना. तो हम कर रहे हैं इसमें. नाउ सिंस R2 and R3 are in parallel combination, so therefore RP equivalent resistance RP कितना होगा? This will be equal to R2 into R3 upon R2 plus R3. क्योंकि 2 रेजिस्टर्स आर देयर, 2 रेजिस्टर, तो हमने सिंपल ये फार्मूला लगा लिया. 1 upon R2 plus 1 upon R3 फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज 2 रेजिस्टर्स आर देयर. तो यहां पर देखिए क्या होगा, therefore RP means equivalent resistance in parallel. R2 की वैल्यू कितनी है? 6, R3 is 3 upon 6 plus 3, so it will be 18 upon 9. And therefore equivalent resistance कितना होगा? 9 to the 18, 2 ohm. Yes. So equivalent resistance of network CB, यहाँ लिख लेंगे. Therefore RP of network CB is equal to 2 ohm. So this is the answer again. Yes, any problem here? It's very simple. देखिए एक एक स्टेप आपको लिखना है. ओके, शॉर्टकट को फॉलो नहीं करेंगे. डन. आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड पॉइंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू AC. AC में कितना करंट आ रहा है, तो इसलिए V कितना दिया है, और इसमें हमने हेडिंग छोड़ दिया गिवन टू फाइंड. तो गिवन जरूर लिखेंगे, ये टू फाइंड में हो गया, गिवन में जरूर लिखेंगे, हेडिंग जरूर लिखेंगे. मेक इट ए हैबिट, then you have to write down heading. Yes, now main a bit and second part शुरू करते हैं. Now second is the current flowing through AC. AC means ये वाला R1 5 ohm में कितना करंट पास हो रहा है.
तो इसके लिए कैसे करेंगे? पोटेंशियल इज 24, तो क्या 24 को 5 से डिवाइड करेंगे? क्या 24/5 इक्वल टू I होगा? I इक्वल टू V/R. Yeah, we have to find out the equivalent resistance of network A, B. Yes, we have to find the equivalent resistance of this network A, B. तो A, B नेटवर्क का हमें equivalent resistance find करना होगा, है ना? तो पहले वो find करेंगे. तो we find equivalent resistance of network AB ये फाइंड करेंगे, है ना? तो देखिए 6 और 3 ये हमने अभी किया था कि पैरेलल में है और इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कितना किया था? 2 ओम और ये पहले है 5 ओम. तो इसको देखिए शॉर्ट में कर देते हैं इसको. तो ये हमारा पहले है हमारा दिया हुआ ये 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड ये हमने अभी किया 6 और 3 का. जब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो दिस बिकम्स दिस वे, ये बन जाना है. दिस इज A हियर और यहां पर क्या है हमारा? दिस इज C एंड दिस इज B और ये कितना आ गया हमारा? 2 ओम. ये हमने किया था, है ना? सो C और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम. तो ये हमने ऐसे लिख दिया. C इज द पॉइंट हियर एंड B इज द पॉइंट आफ्टर दिस. ये ठीक. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो देयरफॉर ये कितना होगा? देखिए दिस विल बी R1 प्लस RP. ये हमारा हो जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3. चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दें, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, नो? सो इट विल बी हाउ मच? 5 ओम प्लस ये हमने किया था 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल हमारा आता है 5 प्लस 18 अपॉन 2 इक्वल टू 18/9. तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 7 ओम आ गया. दिस इज 7 ओम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट. We have to find out the current. So therefore, current in AC क्या लिखेंगे इसमें? I is equal to V upon R. V is 24. R हमने कितना निकाला? 7. तो 7 is equal to 4 एम्पियर. तो करंट हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 4 एम्पियर. ओके. So current हमने निकाला and this current in AC is how much? 4 एम्पियर. तो AC जो हमारा रजिस्टर है 5 ओम, इसमें जो करंट है that is 4 एम्पियर. We have to find out the total current in the circuit. Total current in the circuit. This you have to remember. ठीक है? ये नहीं कि 24 को 5 से डिवाइड करेंगे. This is very very important step. So do it. Hurry up. So now third part is potential difference across AC. AC के across potential difference कितना होगा? If we put a voltmeter here, यहाँ पर हम अगर voltmeter लगा दें तो voltmeter का रीडिंग कितना होगा, है ना? तो देखिए टोटल करंट हमारा आ गया कितना? 4 एम्पियर. So 4 एम्पियर is current passing through 5 ohm resistance. So potential difference. So therefore V is equal to IR हम यूज करेंगे फार्मूला and V is equal to I. I is how much? 4 ampere. So this is 4 into resistance is how much? 5. तो ये हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट. ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC. तो ये आ गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस AC is equal to how much? 20 वोल्ट. तो वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल. सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सिंसियरिटी का ध्यान देना है. तो अगेन आई रिमाइंड यू, इन बोर्ड एग्जाम नॉट टफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, बट थोड़ा सा केयर हमको रखना पड़ता है. एनी प्रॉब्लम हियर? यूजिंग फार्मूला V is equal to IR across AC. So I is how much? 4 ampere. R is given. We can find out potential difference across AC. So note down. Then last part.
So now we have to get the current flowing through 3 ohm resistance. So देखो 3 ohm resistance में हमें करंट कितना होगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सोचिए। एंड इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दे रखा है, दैट इज 28 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 28 वोल्ट। तो इसको हम देखिए पहले एक मेथड से करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस नेटवर्क, है ना। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अक्रॉस दिस नेटवर्क वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। सीपी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए। सो नाउ सिंस V इज इक्वल टू आई BC लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC नेटवर्क। V इज इक्वल टू आई R कैसे है, देखो ये पैरेलल में है, तो हम यहां लिखेंगे RT, पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल करंट हमको मालूम ही है कितना है, टोटल करंट हमको मालूम है कितना है, दैट इज 4 एम्पियर हमने किया था। तो देयरफॉर VBC विल बी आई कितना है 4 एंड RP हमने कितना निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, ये हमने फाइंड किया था 2 ओम, है ना। अभी इससे पहले आपने किया था, दिस इज 2 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC कितना आ गया हमारा, 8 वोल्ट आ गया, दिस इज 8 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना R3 में। सो नाउ करंट जो है हमारा 4 एम्पियर करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको कितना करंट मिलेगा, तो जो 4 एम्पियर करंट है टोटल, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो हाउ मच करंट R3 विल गेट, तो देयरफॉर हम लिखेंगे करंट इन R3 it will be equal to V upon R3 and V is how much, 8 upon this is 3। तो therefore करंट जो है हमारा R3 में आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.66 एम्पियर। ओके, एनी प्रॉब्लम है, चलो ध्यान से देख लीजिए। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नेट C1 CB, वो हमने फाइंड करा VBC इक्वल टू I इंटू RP, बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था, दैट इज 2 ओम, इससे पहले हमने किया है। तो देयरफॉर BC कितना आएगा, 4 एम्पियर इज द टोटल करंट, 8 वोल्ट आ गया। नाउ I R3 कितना होगा, V upon R3, 8 upon 3, we get the value. Same way we can find out how much current is in R3, वो हम क्या करेंगे 8 upon 6 हो जाएगा, 8 upon 6। और जब इन दोनों का करंट आप फाइंड करेंगे, दिस इज करंट हियर I3 एंड दिस इज I2, तो दोनों का जो करंट ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। यस, एनी प्रॉब्लम है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो। सो नोट डाउन, हरी अप मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, देखिए। सो वो भी बता देते हैं हम आपको। सो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना निकाला था हमने, दिस इज 20 वोल्ट एंड टोटल कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 28। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC। तो इसमें हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC नेटवर्क, ओके, अक्रॉस BC। तो टोटल कितना है 28, तो इसका कितना बचेगा, देखिए इट विल बी 28 माइनस 20। 28 टोटल था, 20 किसके अक्रॉस है, AC के अक्रॉस 20 है। अगेन ध्यान से देख लीजिएगा, अक्रॉस AC कितना है 20 वोल्ट है, ये हमने फाइंड किया था। टोटल कितना है 28 है, तो 28 माइनस 20 करेंगे तो दिस गिव्स अस 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC नेटवर्क इज 8 वोल्ट। यही हमने यहाँ पे देखिए फाइंड किया था, है ना। यहाँ पर ऐसे हमने कर लिया, इधर ऐसे किया था, तो दिस इज 8 वोल्ट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन R3। तो देयरफॉर I3, है ना,
current in R3, it will be equal to V upon R3, and here it is 8 upon R3 is 3, and answer वही आएगा 2.66 ampere. The same answer we are getting here. So if you wish, you can follow this method or you can follow this method. दोनों मेथड के लिए आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है ना. अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ मच करंट इज इन 6 ओम, और दोनों को ऐड करेंगे आप तो आप फाइंड करेंगे तो करंट कितना आएगा 4 एम्पियर. करके दिखाएं, चलो वो भी कर लेते हैं. सो एक्स्ट्रा है ये, दिस इज आई, R2 में करंट कितना होगा, ठीक. सो हियर इट इज 8 upon 6. 8 upon 6 means yes, 6 1 जा 6 and 1 point something आएगा ना, 1 point, and here 2 is left, so 6 3 जा 18, 3 एम्पियर. तो नाउ वी ऐड, देखिए इस करंट को और इस करंट को ऐड करें तो कितना आ रहा है, देखिए I is equal to 1.33 plus 2.66, तो ये आएगा 2 and 1 3.99. दिस मीन्स टोटल हमारा ये आ गया 4 एम्पियर करंट. तो दिस वे आवर आंसर इज करेक्ट, और 4 एम्पियर ही करंट इसमें आ रहा है, दिस इज 4 एम्पियर. तो ना 4 एम्पियर करंट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, एक में होगा 2.66, दूसरे में होगा 1.33. आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन आल्सो. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड गेन नॉलेज, एंड आफ्टर दैट गेन मार्क्स, क्योंकि पेरेंट्स को और आसपास वालों को मार्क्स ज्यादा अच्छे लगते हैं ना. Yes, but marks से कुछ नहीं होगा. You have to gain knowledge. So thanks to all of you once again. In new session we shall be solving some more questions, and after that we shall be doing EMF. What is the difference between EMF and potential difference? अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे. तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है and how to find internal resistance, okay, of a circuit. So now God bless you all.